السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابواب الصرف جدید۔ ابواب الصرف یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ اردو، عربی اور فارسی تینوں زبان میں موجود ہے۔ فارسی تو چونکہ بہت سارے مدرسوں کے سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، تو فارسی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ یہ عربی میں یہ کتاب ہے جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں، ابواب الصرف۔ اور اس کتاب کو بہت باریکی کے ساتھ اور بہت گہرائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کتاب کو۔ اور اس کتاب کو صرف ہم صرف کے اعتبار سے نہیں پڑھیں گے کہ صرف کے مسائل آ جائیں، صرف کے بارے میں ہم جان جائیں، بلکہ اس کتاب کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہم کو بنا اعراب والی عربی پڑھنا بھی آ جائے۔ اکثر جن عبارت پر اعراب نہیں لگا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، نہیں کر سکتے ہیں، کافی مشکل ہے۔ لیکن ان میں سے یقین مانیں کہ کوئی بھی چیزیں مشکل نہیں ہے، سب بہت آسان ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی باریکی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے 10-15 ویڈیو بھی اس کے دیکھ لیے ابواب الصرف کے، تو آپ اس طرز پر اس پوری کتاب کو آپ خود سے حل کر پائیں گے۔ بہت باریکی کے ساتھ ہم اس کتاب کو پورا کرنے والے ہیں، تو آپ بھی اسی باریکی کے ساتھ انشاءاللہ چلیں اور میں جیسے پڑھا رہا ہوں اس کو فالو کرتے ہوئے چلیں۔ تو میں ڈائریکٹلی کتاب سے نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے صرف صرف نہیں پڑھانا ہے، بلکہ میں آپ کو عربی پڑھانا بھی سکھاؤں گا کہ بنا اعراب کی عربی کیسے لگائی جاتی ہے، کیسے اس کو سمجھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ جملہ ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں اور یہاں رکھتے ہیں۔ اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ اگر پڑھنے میں دقت ہو تو سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہٹا ہی دیا جائے، لکھنا ہی بہتر ہے۔ ابھی جو بھی ہے میں اعراب ابھی نہیں پڑھوں گا ڈائریکٹ، نہیں تو پھر سمجھ نہیں پائیں گے آپ کے وہاں تک پہنچا کیسے جاتا ہے۔ تو یہ الف کاف لام تا ہے، بس اس کو ایسے ہی سمجھے۔ ابھی اس پر کیا اعراب ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں صرف 3 اعراب ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ کسی بھی لفظ پر یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے پیش کس پہ ہوتا ہے، وہ آپ نے مرفوعات میں پڑھا ہے نا۔ زیر کس پہ ہوتا ہے، یہ آپ نے مجرورات میں پڑھا ہے۔ زبر کس پر ہوتا ہے، یہ آپ نے منصوبات میں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، زبر، زیر، پیش، یہ تینوں آپ کو پتہ ہے۔ مجرورات عربی زبان میں صرف 2 ہی وجہ ہیں کہ کسی بھی لفظ پر زیر ہوتا ہے، کب؟ جب وہ یا تو مضاف الیہ ہوتا ہے یا اس پر حرف جر ہوتا ہے۔ مرفوعات 8 ہیں، فاعل، مفعول وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھا ہے کہ صرف 3 اعراب ہیں: زبر، زیر، پیش، اور پورے لفظ پر یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا۔ فعل کا اعراب تو فکس ہوتا ہے، اس کے باب کے حساب سے اس کا اعراب بالکل فکس ہوتا ہے۔ نصر ینصر سے ہے تو اس کا ینصر کے پیٹرن پر بنے گا۔ اسم کا اعراب جو ہے عامل کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ تو اب یہ الف کاف لام تا جو ہے، اس پر کون سا اعراب ہم کو پڑھنا چاہیے؟ تو اس پر ہم پڑھیں گے پیش۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پیش کیوں؟ اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ کلمہ کے پیچھے کوئی بھی ایسا عامل نہیں ہے جو اس کو جر دیتا یا زبر دیتا، یعنی نصب یا جر دیتا، ایسا کوئی عامل نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پیش دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال ہوگا کہ پھر پیشی کیوں دیا؟ یہاں پر تو کوئی ایسا عامل بھی تو نہیں ہے جو اس کو پیش دے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم نے زبر اور زیر اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا عامل نہیں جس کو زبر یا زیر دے، ٹھیک ہے، پھر پیش کیوں دیا؟ پیش دینے کے لیے تو کوئی عامل نہیں ہے۔
तो उसका जवाब ये है कि ये मारिफा है, अलिफ लाम लगा हुआ है। और आपको पता है कि मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और मुब्तदा का जो एराब होता है उस पर हमेशा पेश होता है, तो इसीलिए मैंने इस पर पेश दे दिया। ठीक है, तो ये अल कलीमा आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए इस पे, अलिफ काफ सीन मीम हा। तो सबसे पहले तो ये अक़साम है, इसके अंदर हा ज़मीर लगी हुई है। ठीक है, इसीलिए अक़साम और हा है। अब मीम पे मैं एराब नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसको हम पकड़ेंगे कि एराब कहाँ से पढ़ना है। इस पर भी मैं पढ़ रहा हूँ पेश। क्यों पढ़ रहा हूँ? इसलिए अक़साम से पहले कोई ज़बर या ज़ेर नहीं है जो उसको एराब लगाए, है ना। अब बीच में ये वाव है, और आपको पता है कि दो कलिमे के दरमियान जब वाव आता है तो उसमें से एक मातूफ़ और दूसरा मातूफ़ अलैह बनता है। और मातूफ़ अलैह क्या होता है? मातूफ़ अलैह दो ऐसे कलिमे जिसका एराब एक हो, वो मातूफ़ अलैह बनता है। यानी दो ऐसे लफ्ज़ या दो से ज़्यादा भी जिस पर एक ही आमिल काम कर रहा हो। अल कलिमतु मुब्तदा बनने की वजह से पेश आया, और अक़सामों को भी हमने मुब्तदा बनाने की वजह से इस पर पेश दे दिया है। तो अब आप सवाल करेंगे कि फिर ये दो मुब्तदा कैसे आ गया? मुब्तदा तो शुरू में आता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये कलिमा एक अलग लफ्ज़ है, अक़सामुहा ये एक अलग लफ्ज़ है। ये दो लफ्ज़ों को बस आपस में एक जगह लिख दिया गया है, इसलिए ये भी मुब्तदा बन सकता है। अक़सामुहा मुज़ाफ़ इलैह मिल करके मुब्तदा बन सकता है, और अल कलिमतु अकेले जो है मारिफा होकर के मुब्तदा बन सकता है। अब ये चीज़ें आपको समझना अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये कोई बात नहीं है। हेडिंग समझने में मुश्किल होती है, इसलिए कि किसी भी चैप्टर का जो है, किसी भी दर्स का जो हेडिंग होता है वो महज़ूफ़ जुमलों से मिल करके बनता है। कभी मुज़ाफ़ इलैह लिख दिया, कभी मौसूफ़ सिफ़त लिख दिया गया, कभी मुब्तदा लिख करके हमें जो है वो ख़बर गायब कर दी गई, कभी फ़ेल गायब कर दिया जाता है। तो हेडिंग समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं है। अब चलिए हम इस जुमले को यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को करना सीखते हैं। ये असल है आपका। अब कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, बिना एराब की अरबी कैसे पढ़ते हैं वो देखें। सबसे पहले एक एक लफ्ज़ को तोड़ दीजिए। सबसे पहले कलीमा लिखा हुआ है, इसको ले लीजिए और सोचिए कि अल कलीमा पर क्या एराब होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया कि इस पर ऐसा कोई आमिल नहीं है जो इसको ज़ेर दे या ज़बर दे, इसीलिए इस पर हम पेश देंगे ये कह के कि ये मुब्तदा है, और ये वाकई में मुब्तदा है भी, इसलिए कि इस पर अलिफ लाम लगा हुआ है। तो कलीमा मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब आ जाइए लफ्ज़ पर, कि लफ्ज़ पर क्या एराब होना चाहिए। सिंपल सा बात है, लफ्ज़ के पीछे ना ऐसा आमिल है जो इसको ज़ेर देगा या ज़बर देगा, इसीलिए मैं इस पर पेश दे रहा हूँ। लेकिन सवाल अब भी है कि अगर इस पर अलिफ लाम तो नहीं है लफ्ज़ पर लगा हुआ, और हमको पता है कि जब अलिफ लाम नहीं हो तो हमको तनवीन देना चाहिए, इसलिए कि तनवीन सिर्फ अलिफ लाम होने की वजह से नहीं आता है, तो हमने इसको तनवीन दे दिया। ठीक है, तो हमने इसको लफ्ज़ुन कहा। ठीक, तो कलिमतुन लफ्ज़ुन हो गया। अब आगे आ जाइए मौजू पे। मैं एराब नहीं पढ़ रहा हूँ, इस पर क्या एराब आना चाहिए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये पहला लफ्ज़ नहीं है, दूसरा लफ्ज़ है। पहला लफ्ज़ लफ्ज़ुन था तो हमने समझ लिया। मौजू पर क्या एराब लगा सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम सोचते हैं, मौजू पे ज़ेर देते हैं। ज़ेर दे सकते हैं? नहीं। ज़ेर देंगे तो किस बिना पर ज़ेर देंगे? अगर मौजूइन पर हम ज़ेर दे रहे हैं तो किस बिना पर? ज़ेर तो दो ही वजह से आता है, या तो हरफ जर या मुज़ाफ़ इलैह। मौजून पर चलो हरफ जर तो मौजू से पहले कोई हरफ जर है नहीं, तो ये जो है मुज़ाफ़ इलैह तो बन नहीं सकता है। चलो ठीक है, या सॉरी मौजू पर तो हरफ जर कोई है नहीं, तो चलिए इस पे कोई हरफ जर नहीं है, इसलिए कि मौजू से पहले लफ्ज़ुन है, वो हरफ जर नहीं होता है, तो मौजू पे ज़ेर हरफ जर की वजह से तो नहीं आ सकता था। अब एक ही वजह बची, वो क्या था? ज़बर देना, सॉरी मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से ज़ेर आना। तो क्या ये मुज़ाफ़ इलैह बन सकता है? तो चलिए ये भी सोच लेते हैं। सोच लीजिए कि कुछ देर के लिए हम मौज़ून को मुज़ाफ़ इलैह बना रहे हैं। ठीक है, मौज़ून को मुज़ाफ़ इलैह बना रहे हैं। तो अब अगर मौज़ून को हमने मुज़ाफ़ इलैह बना दिया, तो इस सूरत में हमको लफ्ज़ुन को मुज़ाफ़ बनाना पड़ेगा।
अब लफ्जुन मौज़ूइन हो गया, लफ्ज़ु मौज़ूइन, ये दोनों मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, और इसका तर्जमा होता है का के की। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा क्या होता है उर्दू में? का के की। तो लफ्ज़ु मौज़ूइन का हम तर्जमा क्या करेंगे? मौज़ू का लफ्ज़। ये कोई बात ही समझ में नहीं आई। मौज़ू का लफ्ज़, ये कोई बात हमको समझ में नहीं आई, इसीलिए ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा नहीं सही बैठ रहा है। ठीक है, दूसरा चांस भी है। लफ्ज़ुन को तनवीन दे दीजिए, पेश ही रहने दीजिए। मौज़ून को भी तनवीन दे दीजिए। क्यों? इसलिए कि ज़बर ज़ेर तो आ नहीं सकता है, ना ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, ना हर्फ़ जर इसके ऊपर है। अब आप कहेंगे ज़बर क्यों नहीं? अगर ये ज़बर होता तो ये इस तरीके से लिखा होता है ना, जब भी नसब होता है तो वो इस तरीके से लिखा होता अलिफ के साथ। नहीं आ रहा है इसलिए ऐसे है, तो ज़ेर भी नहीं आ सकता है, ज़बर भी नहीं आ सकता, इसीलिए इस पर पेश ही आएगा। तो लफ्ज़ुन मौज़ून। अब ये लफ्ज़ुन मौज़ून आया तो अब सवाल होगा कि फिर ये दोनों आपस में क्या है फिर? तो ये दोनों मौसूफ सिफत है। क्यों? लफ्ज़ुन को देखिए, लफ्ज़ुन भी नकेरा हो गया, लफ्ज़ुन भी वाहिद है, लफ्ज़ुन मुज़क्कर है, और लफ्ज़ुन पर पेश है। इधर मौज़ून पे आ जाइए, मौज़ून वाहिद है, मुज़क्कर है, नकेरा है, और इस पर पेश है। तो चार बराबरी पाई गई लफ्ज़ुल मौज़ून के अंदर, तो ये दोनों क्या बन गए? मौसूफ सिफत। तो अलकलिमतु लफ्ज़ुन मौज़ून, मौसूफ सिफत। अब लफ्ज़ुन मौज़ून का तर्जमा मौसूफ सिफत के हिसाब से चेक करके देखिए सही होगा कि नहीं। वज़ा किया हुआ लफ्ज़, बनाया गया लफ्ज़, बिल्कुल सही तर्जमा है। मौसूफ सिफत का तर्जमा सटीक बैठ रहा है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का नहीं बैठा, मौसूफ सिफत का बैठ रहा है, तो ये मौसूफ सिफत है। तो अलकलिमतु लफ्ज़ुन मौज़ून, यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए माने पर। तो माने पर पहले से ही लाम लगा हुआ है, तो ये तो हर्फ जर होगा ही, है ना, ली माने। अब है कि माने के बाद जो ये मुफरद है, इस पर क्या इराब होना चाहिए? ठीक है, माने की वजह से इस पे तनवीन आएगा। मान लीजिए हमने लाम हर्फ जर है और अलिफ लाम नहीं, तो माने पे हम तनवीन ले लेंगे, मानिन पढ़ लेंगे। ठीक, मुफरद पर क्या इराब आएगा? क्या ज़ेर दे दें सिफत होने की वजह से? तो अगर हम सिफत होने की वजह से ज़ेर देंगे तो तर्जमा क्या होगा? लिमानिन मुफरदिन, मुफरद माने के लिए। तो मौसूफ सिफत का तर्जमा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। देखिए अंदाज़ा लगाया और हमने, और ये सटीक बैठ गया। अगर आप कहें कि इस पर पेश दे सकते थे, तो पेश नहीं दे सकते थे, इससे पहले कोई आमिल है ही नहीं जिसको पेश देता, तो पेश नहीं हो सकता था। अगर ज़बर देना होता तो हमको अलिफ लगा के ज़बर देना होता, इस तरीके से हमको लिखना होता, तो ज़बर भी नहीं आ सकता था, तो 100% ज़ेर ही आता। तो ज़ेर दो ही वजह से, या तो हर्फ जर या मुज़ाफ़ इलैह। हर्फ जर तो माने पर नहीं है, हर्फ जर मुफरद पे तो नहीं है, हर्फ जर तो माने पे है। तो मुफरद पर हम क्या करते हैं? तनवीन, मुफरद जो है इसको मुज़ाफ़ इलैह हमने माना, और मुज़ाफ़ इलैह नहीं माना, बल्कि हमने सिफत माना। मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है, मैं ज़ुबान से फिसल जा रहा है कुछ चीज़ें। तो मुफरद को हमने मुज़ाफ़ इलैह जो है नहीं बनाया, बल्कि सिफत बनाया है। तो मानी मौसूफ़ है, मुफरद सिफत। अब यहाँ पर एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि ठीक है ज़बर नहीं आ सकता, ये हम समझ गए, पेश नहीं आ सकता है, ये भी हम समझ गए, लेकिन ज़ेर के दो वजह थे, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के भी वजह हो सकते थे, हर्फ जर के भी। ठीक है, मुफरद पर हर्फ जर नहीं लगा है, ये हम समझ गए। मुज़ाफ़ इलैह तो मुफरद बन सकता था ना, तो मुज़ाफ़ इलैह मुफरद इसलिए नहीं बन सकता है। अगर आप मुफरद को मुज़ाफ़ इलैह बनाएंगे तो ऐसी सूरत में आपको माने को मुज़ाफ़ बनाना होगा। तो माने को मुज़ाफ़ बनाएंगे तो तर्जमा क्या होगा? मुफरद का ज़ेन, तो मुफरद का माने के लिए, तो मुफरद का माने के लिए ये तर्जमा हुआ, और एक है मुफरद माने के लिए। दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा कर रहे तो क्या हो रहा है? मुफरद के माने के लिए, है ना, ये तर्जमा हो रहा है। और मौसूफ़ सिफत का तर्जमा क्या हो रहा है? मुफरद माने के लिए। तब कहेंगे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में थोड़ा सा बारीक फ़र्क है, वो आप आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ फ़िलहाल जो है वो याद रखें कि जो आपने अगर आप इसको मुज़ाफ़ बना देंगे, लीमानी मुफरदिन कह देंगे, तब भी तर्जमा आपका सटीक ठीक ही रहेगा, इसलिए कि जो बारीक फ़र्क है वो बहुत गहराई है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक ऑफ़र है, ठीक है, कि आप या तो इसको मौसूफ़ सिफत बना लीजिए लीमानी मुफरदिन पढ़िए, या आप दोनों को मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बना दीजिए लीमानी मुफरदिन पढ़िए।
बात दोनों में सही है। तो देखिए यही फ़ायदा होता है खुद से एराब लगाने का, कि हम जो भी एराब लगाते हैं ना उसका वजह हमको मालूम होता है, किस लफ्ज़ पर हम ये एराब लगा रहे हैं, इसके हिसाब से इसका तर्जमा क्या होगा। तो यही जो होता है हुनर होता है जो आगे चल कर हमको और महारत हासिल करता है किताबों को समझने में। हम मुख्तलिफ़ एतबार से एराब को लगाते हैं तो मुख्तलिफ़ एतबार से उसके तर्जमे हमारे सामने आते हैं। तो जब अलग अलग एतबार से तर्जमे समझ में आते हैं तो हमको उसके माने की गहराइयाँ धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो लिमानिन मुफरदिन भी पढ़िए या लिमानिन मुफरदिन पढ़िए, दोनों हिसाब से तर्जमा सही हो जाएगा। तो लफ्ज़ुन मौज़ूउन लिमानिन मुफरदिन, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि मौसूफ सिफती बनाइए। अब कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कि अक्सर किताबों में माने मुफरद माने जो होता है ये मौसूफ सिफत ही इस्तेमाल होता है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब एक तो हमने नहव सर्फ के एतबार से समझ लिया और एक हमने एक्सपीरियंस से यानी दूसरी किताबों को पढ़ने से अंदाज़ा लगा के गौर व फिक्र से हमने समझ लिया। तो दोनों हिसाब से हमने यहाँ पर समझने के बाद ये अब तय किया कि हम इसको मौसूफ सिफत रखेंगे। तो लफ्ज़ अल कलिमतु लफ्ज़ुन मौज़ूउन लिमानिन मुफरदिन, कलिमा वो लफ्ज़ है जो वज़ा किया हुआ है एक माने के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए दूसरे जुमले पर। हिया, तो हिया तो ज़मीर है तो ऐसा ही लिखाएगा। अला हरफ जर है तो ये भी बिल्कुल आप कर लेंगे। अब है सला, तो सलास पर जाहिर सी बात है अला हरफ जर है तो सलास को मजरूर बनाना ही है हमको हर हालत में। तो अला सलासती अक़सामिन, अब कहिएगा कि अक़सामिन क्यों? अक़सामिन इसलिए कि जब भी ये 3 से लेकर 9 तक का जो लफ्ज़ होता है वो हमेशा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तरीके से आता है। उसके लिए आपको अदद मादूद पढ़ना होगा जो इंशाअल्लाह हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ इस वीडियो में उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो अला सलासती अक़सामिन, और उसके बाद इस तरीके का जो पॉइंट आता है तो उसके बाद फिर से एक नया जुमला शुरू हो जाता है। तो इस्मुन फ़ेलुन और हर्फुन, तो आपने एराब लगाया। अब तर्जमा देखिए, कलिमा की तारीफ़ क्या है? वज़ा किया हुआ लफ्ज़, वज़ा किया हुआ लफ्ज़ एक माने के लिए, एक माने के लिए ये हैं, हिया से ये हैं, कौन कौन से? इस्म और फ़ेल और हर्फ। तो आपने बहुत बारीकी के साथ एक लफ्ज़ का तर्जुमा किया। अब कहेंगे आपकी ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और इतना वक्त नहीं होता है कि हर किताब को हम इतने वक्त के साथ समझें, पर ऐसा नहीं है। एक लाइन को भी अगर आपने बारीकी के साथ समझ लिया, एक लाइन को भी आपने बहुत बारीकी के साथ समझ लिया, तो इससे ये मदद मिलेगा आपको कि दूसरे लाइनों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि हर किताब जो होता है ये एक खासियत है कि हर किताब एक ख़ास तर्ज पर लिखा जाता है। शुरू के जब आप 10, 15, 20 सफ़े पढ़ लेंगे तो उस पूरे किताब के तर्ज को समझ लेंगे। इसी तरीके से आप शुरू के अगर चंद लाइनों को बहुत बारीकी के साथ समझेंगे, एराब लगा कर समझेंगे, तो बाकी उस पेज पर जितनी भी इबारतें हैं उसके एराब को आप धीरे धीरे समझने लगेंगे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आप ज़रूर ये काम हमेशा करिए। जिस किताब में को भी पढ़े आप ऐसे ही पढ़िए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस पर, इस नए चैनल पर कि दरस निज़ामी की जितनी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे आप दरस निज़ामी में जितनी किताबें हैं एक साल अव्वल से लेकर दौर हदीस तक की, वो सारी किताबों में से कुछ किताबें ज़रूर आपको पढ़ाऊँ। कोशिश तो सारी की रहेगी, लेकिन वक्त जो है मुस्तकबिल का किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। तो इंशाल्लाह जो भी मुझसे हो पड़ेगा बन पड़ेगा मैं करूँगा। कोई नई किताबें आपको चाहिए होंगी तो आप उसके लिए मुझसे मांग सकते हैं कि हमको ये किताब पढ़ा दीजिए। तो ये तो एक यूट्यूब के ज़रिए हमारा एक सेशन चलेगा, धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे वो। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी मदरसे में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि हमको कोई किताब जो है हमारे पास एक तो 3 साल का आलमियत का कोर्स पहले से चल रहा है, जिसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो में जो वेबसाइट का लिंक दिया रहेगा वहाँ जा कर के आप जो है देख लेंगे और उसकी डिटेल वहाँ से आप निकाल लेंगे, या आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट करके सारी डिटेल जो है वो निकाल सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
اس پہ ہم لوگ جو 3 سال کا علمیت کورس چلاتے ہیں، گھر بیٹھ کر کے آپ پورے علمیت کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں 3 سال کے اندر، لڑکے اور لڑکیوں سب کے لیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے، تو اس کی ڈیٹیلس آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور آپ پوری جو ہے وہ عالمیت کورس نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ کہیں پہلے سے کر رہے ہیں، لیکن کچھ کتابوں میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، جیسے جلالین ہے، بڑی کتاب جلالین ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، یا چھوٹی کتابیں ہیں، قصص ہیں، فقہ المیسر وغیرہ ہے، نور العزا ہے، یا دوسری اور بھی کوئی کتابیں ہیں، تو اب وہ آپ ہم سے وہ بھی خرید سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹور پر ساری درس نظامی کی جو ہے کتابوں کی ویڈیو موجود ہیں، اس کی ہر کتاب کی کچھ قیمت جو ہے وہ ہم نے رکھی ہے، وہ قیمت آپ ادا کر دیں گے تو اس پوری کتاب کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت کم قیمت پر مل جائے گا۔ مثلا میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں، قصص النبیین کا جو پہلا حصہ ہے اس کی قیمت ماتر 300 روپے، اور 300 روپے میں آپ کو پوری قصص النبیین کی جو ویڈیو ہے وہ مل جائے گی۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بنا اعراب کا یہ قصص پڑھا کر آپ کو بتایا کہ لفظ کی تشریح کی ہے، ویسے ہی میں نے قصص النبیین کی پوری ویڈیو کو نحو صرف کے اعتبار سے پوری تشریح کر کے سمجھایا ہے، تو وہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا، اور ویڈیو سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ زندگی بھر اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، بھول جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں، فوراً ویڈیو پلے کر کے آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، ہمیں سپورٹ کریے تاکہ ہم اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔